Hi everybody, I am Rahul Pathak, General Manager Medical Services, Inkemi Health Specialities. Today I am in the city of Peshwas, Pune. I am there at Osho Park. Beautiful, serene, green environment over here. And with me today is Dr. Ritu Sandwani. She is the consultant gynecologist, eminent IVF specialist, CEO and founder of 360 Degree Healthcare Studio. Today we'll be talking about mastalgia. We'll be discussing in depth, about mastalgia, and Dr. Ritu would tell that what are the multiple effects does it have on women. So, Dr. Ritu. Yeah. Hi, thank you Rahul and welcome to my city which is known as the Punya Nagari Pune. Or friends, this is also known as the Oxford of India also. So when Dr. Rahul and we discussed that we have to do something regarding the information for the mastalgia. So I suggested Dr. Rahul that this is the best place. The Osho Teeth Park will be the best place. In the natural scenic beauty, we can discuss about the mastalgia, which is a very, very common problem. So, Dr. Ritu, my first question would be that how common do you see mastalgia patients, and what is the common age group where do you find patients complaining of breast pain? Very important question. Dr. Rahul, these days we are seeing lot of patients of the mastalgia. We can say the incidence is up to 70 to 77%. I am including the all age group of the patient. मतलब patient जो हमारे पास आते हैं from adolescent से लेकर menopausal age group तक के. तो जैसा कि मैंने बताया कि यंग एज की लड़कियां 12 साल 13 साल की यूजुअली उनके मॉम्स उनको साथ में लेकर आते हैं कि मैडम इनके पीरियड अभी शुरू है मेरी डॉटर के, लेकिन इसको इतना ज़्यादा ब्रेस्ट में पेन होता है पीरियड आने से पहले कि वो इतना रोती है. और कुछ दूसरा जो एज ग्रुप हमारे पास आता है अराउंड 23-24 ईयर्स एज ग्रुप का, हु आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, वो भी कई बार बोलते हैं कि वो इतना डरे हुए होते हैं कि मैम हमें इतना ब्रेस्ट पेन होता है, तो अभी जब हम आगे फैमिली के लिए प्लान करेंगे जिसमें हमें कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये ब्रेस्ट पेन और एग्रावेट हो जाएगा. तीसरा, जब मैं आती हूँ मीनोपॉजल एज ग्रुप के लिए, तो इसमें जब भी पेशेंट आते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर होता है फॉर दिस ब्रेस्ट पेन. दे फर्स्ट थिंक दैट इट इज़ अ कैंसर. एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि सबको ऐसा लगता है कि हाँ ब्रेस्ट पेन हुआ नहीं कि अब तो हमें कैंसर हो गया. तो वी आर सीइंग ऑल एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स. I wanted to ask you that the reasons for mastalgia. There are controversies behind the pathology. So, what do you feel is the exact cause, right, in your opinion, for mastalgia and breast pain? Rahul, this is again a very, very important question. See, for the mastalgia, we are getting two kind of patient. One is the cyclical mastalgia, one is the non-cyclical mastalgia. Cyclical mastalgia हम उसको बोलते हैं जिसमें लेडी को हर साइकिल में पीरियड्स में पेन होता है. दूसरा हम बोलते हैं नॉन साइक्लिकल mastalgia, जिसका कि पीरियड से कुछ रिलेशनशिप नहीं है, लेडी को कभी भी किसी भी टाइम पर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है. तो अभी जैसा आपने पूछा रिगार्डिंग द साइक्लिकल mastalgia, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर कमिंग टू अस, दे आर सेइंग कि हमको जो है पीरियड के आने से कुछ दिन पहले ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है एंड वंस आर पीरियड्स स्टार्ट दिस ब्रेस्ट पेन गोज. All right. So for this, mostly the reason is the hormonal imbalance. We will go in the detail as, and another is the non-cyclical mastalgia, जिसमें कि पेशेंट बोलता है कि मैम हमें कल तक तो कुछ भी नहीं था, अभी हमारे पीरियड भी हो गए, हमें सडनली बहुत ब्रेस्ट में पेन हो रहा है. तो नॉन साइक्लिकल mastalgia के लिए व्हाट वी एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि कभी कभी ऐसा सी द इन द ब्रेस्ट द वन बिग मसल इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल. तो समटाइम्स देयर इज सम, अभी आजकल एवरीबडी सो मच इज कॉन्शियस, समटाइम्स दे डू अ हैवी पुशअप्स, लिफ्ट हैवी वेट्स और डूइंग द एक्सरसाइज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड. 3-4 महीने तक नहीं किया, एकदम से गए एक्सरसाइज के लिए, तो अगर एकदम से सडन कोई हैवी वेट उठा लिया, मसल टीयर हो गया, तो उसकी वजह से भी पेन होता है. अदर वेरी इंपॉर्टेंट इज द कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, जो हमारी रिब केज के पास में अगर वहाँ स्वेलिंग आ जाती है तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट के एरिया में पेन होता है, जिसको फिर हम बोलते हैं नॉन साइक्लिकल mastalgia. Dr. Ritu, Yeah. how much does lifestyle, diet affects in the treatment of mastalgia and affects the young women? Yeah. Everybody is so much conscious about the lifestyle, but one group of the population who are coming to us is very much addicted to the junk food. Right. Means they are telling like that कि मैडम हम सुबह ऑफिस में जाते हैं काम के लिए और शाम को जब तक हम वापस आते हैं हम इतना थक चुके होते हैं कि हमारे पास Very. कुछ कुक करने की ताकत नहीं है. Very हमारे true. लॉग इन करने का तो टाइम डिसाइडेड है, लॉग आउट करने का टाइम डिसाइडेड नहीं है. Very सो true. वंस दे कम बैक दे ऑर्डर सम जंक फूड.
these days in the post lockdown period, or you can say from the lockdown period, everybody is so much addicted for all these. We are just simply googling and ordering, and we are getting very easily all the things. So what we suggest to our patients, to avoid the junk and processed foods. And for this mastalgia, very important, because in mastalgia, one etiology also comes for the fatty acid imbalance also. So what we suggest our patients, the salt intake, less of oil intake and less of the sugar intake. So we all know, we are telling the patients to avoid the things of this refined flour. मैदा हम बोलते हैं कि avoid करने के लिए, और बहुत सारे patients ऐसा भी बोलते हैं हाँ कि उनको canned फूड्स खाने हैं, वो बोलते हैं बस टाइम नहीं है मैम, हमने कैन खोला, माइक्रोवेव किया और हमने वो खा लिया. तो वी ऑल नो देयर आर लॉट ऑफ researchers have come that the plastic in all that is creating a lot of imbalance, endocrine disruption, so that all is not good. तो डॉक्टर राहुल, व्हेन आई एक्सप्लेन टू माय पेशेंट्स, मैं पेशेंट को एक सीधा फंडा बताती हूँ कि आप बोलते हो कि हमने मैडम ये फूड खाया, इसमें लिखा था कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, हमने ये जूस पिया, वी हैव टेकन दिस मिक्स फ्रूट जूस और दैट जूस, हमारे पास फ्रेश खान, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है. तो एक सिंपल फंडा है कि अगर हम सुबह घर पे दाल चावल बनाते हैं, अगर वो भी हम फ्रिज में ना रखें शाम तक, तो वो भी ख़राब हो जाता है. तो ऐसे फूड जो 5 महीने 6 महीने पहले बने हुए हैं, वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? Ma'am, ask you then, what are the micronutrients, right, which plays a very important role in mastalgia, Right. and what are the key ones? Yeah. So for this mastalgia, see, now a lot of studies have come regarding the role of this vitamin E. So vitamin E plays a very very good role for this healing of this mastalgia also. तो अभी क्या होता है डॉक्टर राहुल, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं वो पहले तो गूगल करके आते हैं. बीइंग प्रैक्टिसिंग इन द पुणे, इन द मेट्रो सिटी, जब पेशेंट को थोड़ा भी ब्रेस्ट पेन हुआ तो उन्होंने गूगल कर लिया कि उसके लिए हमें क्या लेना है. तो कल ही मेरे पास एक पेशेंट थी, बोली मैम मैंने कहीं तो पढ़ा कि स्टार फ्लावर से कुछ मिलता है, मुझे वो लेना है. तो आई टोल्ड हर भाई उसमें तो हम इवनिंग प्राइमरोज ऑयल देते हैं. इवनिंग प्राइमरोज ऑयल इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ mastalgia because it contains the linoleic acid and gamma linoleic acid, but we have to give that in the proper dosage. तो क्या होता है, अब सिमिलरली जैसे विटामिन ई हो गया एंड EPO हो गया, so we give the combination of that, but patient what think कि उन्होंने जितना गूगल पे पढ़ लिया, जितना डोज उसमें लिखा है उसी से उनको रिजल्ट आ जाएगा. But frankly, once we are giving this EPO, we are prescribing a dose minimum of 1000 mg, minimum 3 times a day. That is also for the minimum time period of 4 weeks to 6 weeks. कम से कम 6 weeks तक तो लेना ही लेना है. और ऐड करना चाहूँगी रिगार्डिंग द रोल ऑफ विटामिन डी. तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज कम नाउ टू बी इन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ लॉट ऑफ डिजीजेस. और हम जबकि एक ट्रॉपिकल कंट्री में हैं, तब भी हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के. तो अब इसके लिए भी हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अभी सभी को आदत हो गई है एसी में काम करने की. हम सुबह जाते हैं काम पर, रात भर हम एसी में रहते हैं, और फिर हम शाम को जब काम से लौट रहे हैं तब तक सनसेट हो चुका है. तो एक विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. Dr. Ritu, with respect to vitamin D, what do you think is the appropriate dose for in patients of mastalgia, as well as is there a role of iron where you see anemia as well related to mastalgia? Vitamin D, of course, a very very important thing. So, Dr. Rahul, as we all know, the vitamin D preparations, these are available of the multiple doses and duration. What we prefer is usually the 60,000 international unit weekly, or we can give 2000 international unit per day also. So depending on the patient's profile and how the patient is eased to take, so sometimes we are prescribing the 60,000 international unit weekly. That can be either in the capsule form, gel form, nano preparation, lot of preparations are available, or the powder form. So patient has to take that once in the weekly. So vitamin D, of course, we are advising each and everyone. And other, as you asked me regarding this anemia, yes, our India, lot of population is affected by the anemia. तो अगर शरीर में खूनी कम होगा तो किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति हमारी कम हो जाती है. तो iron plays a very very important role. So yes, we are prescribing the some dietary changes also, and the iron also we are prescribing. So that all depends that what's the condition of the patient. Sometimes we are giving about according to the patient's condition, that usually the dosage is a single tablet we are giving, and besides that in the diet we are telling the patient to add lot of the green leafy vegetables. और अगर पेशेंट यहाँ है महाराष्ट्र से, तो हम जैसा बोलते हैं कि उसको मूंगफली और गुड़ खाना है, बीट रूट लेना है,
टमाटर लेना है, और जितना ही प्लेट कलरफुल रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऐसे ही में अगर पेशेंट हमारे पास नॉर्थ की तरफ से आ रहा है तो जहाँ पर मूंगफली और गुड़ की जगह हम बोलते हैं चना और गुड़ ज़्यादा खाना है, बाकी जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम प्लेट में ऐड करेंगे. I can explain in one line if you ask me, Dr. Rahul. So we tell the patient the plate should be the rainbow plate. तो आपके पास जितने डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे उतना अच्छा रहेगा एब्जॉर्प्शन. Ma'am, this is something really nice to explain in a very simple way to your patients. And how do you diagnose? How do you investigate? How do you come to a diagnosis when it is mastalgia? सो फॉर दिस मेस्टेल्जिया, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया डॉक्टर राहुल, तो मेस्टेल्जिया के लिए जब भी पेशेंट हमारे पास आता है पहली बात उनके दिमाग में यही डर होता है कि उनको कैंसर हो गया है. बहुत पेशेंट एप्रीहेंस आते हैं, बहुत ही एंजाइटी में आते हैं पेशेंट कि उन्होंने जब देखा कि ब्रेस्ट में पेन हो रहा है उन्होंने गूगल किया और पढ़ा, उनको जहाँ पे एक फर्स्ट डायग्नोसिस दिखती है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. तो फ्रेंड्स, पहले ये वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर में जो पेन होता है वो बहुत लास्ट में आता है, ऐसा नहीं होता है कि उसमें पहले पेन होता है. तो अब मेस्टेल्जिया जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मेस्टेल्जिया के लिए जो हम इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उसमें एक आता है अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट, और अगर पेशेंट का एज मोर देन 40 ईयर्स है तो फिर हम मेमोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं जिसमें कि ब्रेस्ट का एक्सरे लिया जाता है. और अगर बहुत ही कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें इन दोनों में हमें कुछ कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो देन वी गो फॉर द MRI ऑफ द ब्रेस्ट, बट दैट इज़ इन द वेरी वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ द केसेस. Is there a role of D-chiroinositol and myoinositol, which is quite related with PCOS, and it is related with your fibroadenomas? So is there a role? Yeah. See, these days so we have found lot of studies for this D-chiroinositol and myoinositol. What we are giving in the ratio of 40:1, we are getting a very very good results. ऐसे भी कुछ स्टडीज़ आए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि PCOS के पेशेंट्स में भी मेस्टेल्जिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. उसमें जो बोलेंगे हम कि मे बी ड्यू टू द ओबिसिटी, बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं ओबीज होते हैं. प्लस बिसाइड्स दैट ये जो है मेस्टेल्जिया, अभी तक तो हम फीमेल्स में डिस्कस कर रहे हैं, पर कुछ हमारे पास few percentage of the patients are coming, of the male patients are also coming with this mesalgia. तो yes, of course, because myoinositol, D-chiroinositol का जो कॉम्बिनेशन एक न्यूट्रास्यूटिकल कॉम्बिनेशन है तो वो देने से भी कई बार पेशेंट्स को काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है, स्पेशली इन द PCOS पेशेंट्स. So we had spoken about the nutrition aspects of it. How do you otherwise manage with the drugs? What are the choices of your drugs or contraceptives when you are taking care of mastalgia? Yeah. So if you ask me, the first drug of choice is the EPO. It's the evening primrose oil and vitamin E combination I am giving to my patients. But specifically, I always tell my patients that you have to take a complete course of minimum 6 weeks. तो पेशेंट क्या करते हैं, नहीं तो 2 हफ्ता खाएंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे कि उनको फिर से प्रॉब्लम हो रहा है. सो EPO एंड विटामिन E कॉम्बिनेशन इज़ द फर्स्ट ऑफ माई चॉइस. सेकेंड, अभी जैसा कि कुछ पेशेंट्स में हमको ब्रोमोक्रिप्टिन भी देना पड़ता है. अब नाउ कमिंग टू द OCPs, एक्चुअली आई एम नॉट गिविंग OCPs फॉर दैट बिकॉज क्योंकि इनफैक्ट मैं रिवर्स में आपको बताती हूँ, कुछ पेशेंट्स जो OCPs ले रहे हैं या दीज डेज वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यंग गर्ल्स हु आर टेकिंग लॉट ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. हर दिन OPD में ऐसा पेशेंट होता है कि कोई ना कोई पेशेंट आती है कि हमने अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ और हमने एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई. तो इनफैक्ट उनमें इतना हाई डोज ऑफ हार्मोन होता है तो इनफैक्ट दे आर कॉजिंग द मोर ब्रेस्ट पेन, मोर ब्रेस्ट सोरनेस. सो वी कैन ईजिली टेल द पेशेंट, अगर आप ये विटामिन E, EPO का कॉम्बिनेशन लेंगे, सम अमाउंट ऑफ विटामिन D ऑल्सो वी आर एडिंग फॉर minimum 4 to 6 weeks, we are getting a very very good results. Ma'am, how do you counsel your patients when a parent is coming or when a age-old female is coming to you? How do you counsel them? A very very important question. See, once the parents are coming to us with the young girls, तो सबसे पहले तो हम उनको डाइट के बारे में बताते हैं, उनको लाइफस्टाइल क्या चेंज करना है वो बताते हैं, और मॉम की ऐसी ड्यूटी लगाते हैं. कई बार मॉम ऐसा बोलती है मेरी बेटी को टाइम ही नहीं है, वो सुबह कॉलेज चली जाती है फिर रात में आती है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. तो बोलते हैं कि आप जितनी बार मोबाइल में चैटिंग करते हैं आप उनको याद दिलाएं, मतलब आप दिन में कई बार तो फ़ोन करते हैं या चैट करते हैं कि आपको पानी प्रॉपर पीना है, आपको उनकी डाइट में जितना हो सके
आपको नेचुरल फूड देना है इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्रिजर्व फूड. एंड इनफैक्ट द सोशल मीडिया ऑल्सो क्रिएट्स अ वेरी वेरी गुड रोल. आई तो माई सेल्फ इज़ पोस्टिंग लॉट ऑफ रील्स इन द इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. तो इसका भी कई बार बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है. पेशेंट डिजीज़ के बारे में डालकर जब गूगल करते हैं तो ठीक है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा भी मिलती है कि इसको कैसे हमें ट्रीट करना है और कब उनको डॉक्टर के पास जाकर ही दिखाना है. ऐसा नहीं है कि जैसा डॉक्टर राहुल ने पूछा कि हाँ उन्होंने पर गूगल किया तो उनको खाली ऐसा दिख गया कि विटामिन ई और ईपीओ लेना है, तो उसके बाद पेशेंट क्या करते हैं, हाँ हमने तो एक एक डोज ऑनलाइन मंगा कर खा लिया, हमें नहीं आराम हुआ. तो नहीं, एक बार आपको जाकर जरूर डॉक्टर के पास मिलना है, जिससे डॉक्टर आपका ब्रेस्ट चेक करेंगे और इफ़ रिक्वायर्ड वॉट एवर द टेस्ट आर रिक्वायर्ड वो डॉक्टर आपको बताएंगे, तो आपको वो फॉलो करना है. अभी जैसे इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, जैसे आपने सारी एज ग्रुप पूछा, स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दीज डेज. तो हमको पेशेंट को बोलना है कि आपको अपना स्ट्रेस कम करना है. जितना आप अपना स्ट्रेस कम करोगे, स्ट्रेस एक ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली इन द मीनोपॉजल एज ग्रुप. बहुत सारे पेशेंट्स में इतना स्ट्रेस होता है, तो एक अपने को डी स्ट्रेस भी करना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. So, Dr. Ritu, other lifestyle factors in terms of alcohol, in terms of your Smoking, the depression which is involved in mastalgia, and smoking which is there. How do you because these are very common lifestyle activities which people have been indulged into. So how do you convince your patient, and what are the effects? Right? Yeah, lot of patients, those who are coming to us with the mastalgia, once we ask the detailed history, yes, they are very much addicted to the smoking and any form of the alcohol intake. So usually हम जो अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, आपको जो भी लेना है आपको लिमिट में रखना है. बैलेंस, आप अगर बहुत एडिक्टेड हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. अदर पॉइंट एज यू हैव करेक्टली रेज रिगार्डिंग द डिप्रेशन, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स पे होते हैं. सो उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट से भी कई बार पेशेंट को मैस्टेल्जिया होता है. तो या पेशेंट डिप्रेशन में ही ऐसा बोल रहा है कि मुझे मैस्टेल्जिया हो रहा है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, ट्राई टू सोशलाइज विद द फ्रेंड्स, एंड आपको अपना हैप्पी मूड रखना है, तो वो भी एक बहुत कुछ हेल्प करता है इसमें. Thank you, Dr. Ritu, for explaining so beautifully the mastalgia, and I'm sure all the women would be helpful, seeing your video. And I'm looking ahead for having more such patient awareness topics, and sure it would be definitely be very useful for the public. Pleasure is mine, Dr. Rahul, and thank you, Inikami, for initiating such a public awareness activities. I think this is the need of the hour. The more we educate the lady or the family, that will be great and helpful for everyone. So thank you to you also. Thank you, ma'am. Thank you very much.